Hey guys, good morning. In the last class, we solved some of the questions on tautomerism. Now we will solve some other type of question on tautomerism. Okay, now see here is the list of question. Now at first, see the question. Draw the enol form of following. Draw the enol form. You can see this is the keto form. This is the keto form. Now we have to draw its enol form. So before drawing enol form, what we need to find? We need to find the alpha hydrogen, acidic hydrogen. So see, this carbon is alpha carbon, this carbon alpha carbon hydrogen attached to this one, and this one is alpha hydrogen, hydrogen attached to this one, and this one is alpha hydrogen. Correct. Now if we go for draw, so now first time I am drawing this one. Okay, if we go to draw this molecules, what will happen? C double bond O, and we remove H, remove one H from here, so negative will form. Now it will go in conjugation with this molecule. Since it participate in conjugation, so the next molecule will form, that will be like this, O minus. Now it will take H plus from the solution. It will take H plus from the solution, and this one will be there enol form. Is it correct? Is it correct? This one will be there enol form. Okay, तो डायरेक्टली लिखना है मेरे को. We will try to write directly. तो what will we do? We will just remove the H plus and shift the pi bond here and shift the H plus here. Okay, you know X double bond Y and Z form directly, and Z have H. Now what will we do? We will transfer that H to X and double bond to Z. Is it okay? Okay, now I'm writing the direct form. So what will we do? We will remove H from this point and put the double bond here and supply H here. Okay, is it okay? We can write it like X double bond Y and Z. Z have H transfer to here, H transfer to, sorry, okay, H transfer to X and double bond in between Z. Is it okay? Okay, now come to the second one. You can also say that, and another form will also form like this one. Along with this, we can also see that this will be also form this side also and this side also, but both of them are same molecules, so we can write any of them. Now question number 2. See question number 2. How many alpha H are available? See first, how many alpha H are available. This is the alpha H. There will be 2 alpha H. This one will be the alpha H. Is it okay? Now if you see, this one also be alpha H. Could this one be alpha H for this keto form? No, this one will be alpha H with respect to this double bond, but not for this, and this double bond is not in conjugation with this carbon. That's why it will not be counted. Okay, ओके, अल्फा एच किसके लिए देखने हैं? कीटो फॉर्म के लिए. कीटो फॉर्म के लिए मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ अवेलेबल है उसके रिस्पेक्ट में अल्फा एच देखना है. क्लियर है? उसके रिस्पेक्ट में अल्फा एच या तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ हो सकता है या तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ हो सकता है. ये अल्फा एच तो है मगर इस डबल बॉन्ड के लिए और ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता, अदर इसलिए ये इसके लिए अल्फा एच काउंट नहीं होगा. क्लियर है? अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता, अगर ये डबल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड यहाँ, चलो ये वाला सवाल देखो,
मैं क्या बता रहा था, अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता तो ये H क्या होता, अल्फा H में काउंट होता। सिंस ये इससे अटैच अल्फा H नहीं है, मगर डबल बॉन्ड से अटैच है, अल्फा H हो सकता है, और ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे। मगर यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्लियर है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। इज इट ओके? तो देखो यहाँ पे दो हैं बॉन्ड, तो दो तरफ से H को हटा सकते हैं और वहाँ पे डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक, फर्स्ट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, O and H, it will get H, double bond shift here and here, one double bond is available. Another form will be like this, O and H, double bond will shift here and one double bond is also available here. Okay, so these two are the enol form of this keto form. Now question number third, see the question number third, what will happen, see whether this H is alpha H or not. No, let me remove this one, okay, now see this one. Now we have 3H, 2H is available here and 1H is available here. To this H, this is connected to this carbon, is connected to this carbon is connected to carbon which is directly attached to oxygen having double bond. Okay, so this carbon should be alpha carbon, but it is sp2 hybridized, and I told you when it is sp2 hybridized, that its hydrogen will not be acidic. Only sp3 carbon available in the adjacent of double bond or conjugated system, then double bond conjugated system carbocation free radical and having hybridization sp3, then only it will be acidic H. ओके, करेक्ट। तो ये एसिडिक H नहीं होगा। एसिडिक H कौन सा होगा, अगर डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन ट्रिपल बॉन्ड या कंजुगेट सिस्टम से अटैच कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ही उसको हम लोग अल्फा कार्बन और अल्फा H काउंट करेंगे। और अल्फा कार्बन अल्फा H क्या होगा, हमारा एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, तो ये वाला हमारा एसिडिक H नहीं है, तो ये टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस वाले को देखो, तो ये टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर इसने टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट किया तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे H आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सॉल्व इट। पहले एक बार ट्राई करें सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, then 7 and 8, question number 9 and 10. At first try it, then I will solve. Now see the question number 4. Here we have 2 alpha H, 1 H is here and 1 H is here. Here we also have 2 alpha H. तो both the side, तो किसी भी एक साइड रखो, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। तो सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, डबल बॉन्ड O, sorry not double bond, we have to remove the double bond, and H and double bond will available here. This could be available this side also, then the molecules will be same. So this one will be the enol form. Now for this check, here if you see, this is, and these two should be alpha H, but this carbon is sp2 hybridized, so it is not alpha hydrogen. Is it okay? Now see this, it is alpha hydrogen. Sir, it is alpha hydrogen. Why it is alpha hydrogen? It is directly attached to sp2 carbon, double bonded carbon, which is in conjugation with double bond. So this one will be alpha carbon for double bond also. करेक्ट, मीन्स इस डबल बॉन्ड के लिए भी ये क्या है, अल्फा कार्बन की तरह बिहेव करेगा। बताया कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, कॉन्जुगेट सिस्टम में है, तो इस कार्बन के लिए, इस वाले कार्बन के लिए ये भी क्या होगा, अल्फा एच की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसका हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक होगा। क्लियर है? अगर हाइड्रोजन एसिडिक है तो क्या क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट थिंग व्हाट विल बी डू, रिमूव एच, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव रेजोनेंस में जा सकता है इसके साथ, और ये रेजोनेंस में जा सकता है इसके साथ, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक कर जाएगा, इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। ओके, बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करा दीजिए। देन व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो ये डबल बॉन्ड वहीं था, ये इधर को आ गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे एक ON
H आ जाएगा। क्लियर है? तो दिस वन विल बी देयर इन ऑल फॉर्म। क्लियर है? चलो यहाँ तक समझा? नो come to the question number 6. Now see the question number 6. Question number 6 is slightly different from rest the question. See question number 6. Question number 6. Now we have to see alpha hydrogen. Which hydrogen is alpha hydrogen? This hydrogen available here. These all the three are alpha hydrogen. Okay. Now what will we do? Remove the alpha hydrogen, then it will form CH minus. Now CH minus, CH double bond and CH and C double bond O and H. देखो कंजुगेट सिस्टम आ जाए तो डायरेक्टली लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप स्टेप वाइज लिखें। तो इस वाले में देखो अब क्या होगा, ये इसके साथ रेजोनेंस में चलेगा तो ये इसके साथ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH एंड O माइनस। अब क्या करना है, यहाँ O माइनस को H सप्लाई कर देना है सॉल्यूशन से, तो यहाँ क्या आ गया, दैट इज इनॉल फॉर्म। तो दिस विल बी देयर इनॉल फॉर्म। ओके, यहाँ तक समझा? ओके, come to the next question. Question number 7. Now question number 7, see. In this question basically we have okay, in the question number 7 basically we have 2 alpha hydrogen, or it may be more than 2. See, there will be 3 hydrogen here, so these are alpha hydrogen. Here also 2 hydrogen, here also 3 hydrogen. So all are alpha hydrogen. Okay, now the first one, what will happen, we can remove hydrogen directly from here and shift double bond here and O minus here. So this one will be like this. This will remain same. Here one OH and double bond. Okay, this one will be the one structure. Now see the another structure, what it could be. It could be like this, double bond shifted here, O and H and double bond available here. But both of them are the same structure. ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, एक ही स्ट्रक्चर है, तो दोनों में क्या करें, एक ही को काउंट करें। क्लियर है? तो दूसरे को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, तो मैं दूसरे को हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए दूसरा क्या बन सकता है, नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ये हाइड्रोजन भी जो है अल्फा हाइड्रोजन है, अगर इसको लेके आया तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे OH लगा दिया, इस तरह लिखो। ओके, यहाँ पे O और यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। दिस वन विल बी द वन स्ट्रक्चर। और इसी में दूसरा पार्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, इसी में दूसरा पार्ट बनाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन सेम रह जाएगा, यहाँ पे O एंड H आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर हो जाएंगे, पर ये दोनों भी क्या है, सेम है, तो हम किसी एक को ही काउंट करेंगे, तो वी विल काउंट वन एंड रिमूव वन। तो दीज टू आर द इनॉल फॉर्म ऑफ this molecule. Correct? Okay. Okay, now come to the question number 8. So I am removing this one. Question number 8. See, question number 8, at first we need to find alpha H. To find the alpha H, this is the alpha H, this is also alpha H. It is not alpha H क्योंकि ये एसिडिक H नहीं है। क्लियर है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच, डायरेक्टली अटैच नहीं है। क्लियर है? sp3 तो है मगर डबल बॉन्डेड से डायरेक्टली अटैच नहीं है। अब देखने हैं तो यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया जाए एंड यहाँ पे OH और यहाँ के डबल बॉन्ड को जैसा था उसी तरह से रख दिया जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा हम ये कर सकते हैं कि इस वाले में डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड वहाँ नहीं रखे, हम इसको H को हटाया और यहाँ पे H रखा और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O and CH3। और कुछ बन सकता है क्या, तो देखो एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, हम बना के देखें, पॉसिबिलिटी देखें क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है। CH3
यहाँ पे OH डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन। क्या आपकी बार चेक करो, ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम नहीं है कि दो कीटो साइट है ना, एक ये साइट है और एक ये साइट है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये दो बन गए और इसके रिस्पेक्ट में तो बस एक ही बन सकता है, ये बनेगा। क्लियर है? तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर, ये जो दो स्ट्रक्चर, ये वाला और ये वाला, क्या ये दोनों सेम है क्या? नहीं सेम है। सेम है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कीटो फॉर्म यहाँ अवेलेबल और यहाँ कीटो फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है, तो दोनों डिफरेंट हो गए, मतलब इसको भी काउंट करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो कितने इनॉल फॉर्म आ गए? देयर आर 3 इनॉल फॉर्म। ओके, समझा? चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सी क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें बताओ क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे अल्फा एच कार्बन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच होंगे और यहाँ पे 2 अल्फा एच होंगे। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, तो एक तो हमारा ये बन जाएगा, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O, और दो देखो कीटो फॉर्म भी क्या है, 2 कीटो फॉर्म है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। तो हम ना पहले वाले के इसके फर्स्ट के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, इसको सेकेंड मार्क कर लेते हैं। तो डबल बॉन्ड ONH, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे साइड के साथ पहले वाले को बना दिया OH और डबल बॉन्ड यहाँ रख दिया और इसको ऐसे रख दिया। क्लियर है? तीसरा क्या होगा, हम सेकेंड वाले का यूज़ करें, तो इस साइड में तो बस एक ही H है और ये अल्फा H है नहीं, ये अल्फा H है नहीं, तो ये अल्फा H इसके रिस्पेक्ट में भी है, इसके रिस्पेक्ट में भी ये क्या है, ये अल्फा H है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी हमें देखना पड़ेगा। तो हम उसके रिस्पेक्ट में देखें तो हमारे पास डबल बॉन्ड ये आ गए, और दूसरा क्या हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे ONH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। तो देखो ये वाला और ये वाला क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस एंड पे मिथाइल है और इस एंड पे हाइड्रोजन है, तो एंड डिफरेंट है। क्लियर है? तो कितने इनॉल फॉर्म बनेंगे इसके, 3 इनॉल फॉर्म आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का देखो, बताओ कितने इनॉल फॉर्म बनेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 में कितने इनॉल, सबसे पहले क्या ढूंढने, अल्फा एच। अब देखो अगर आप अल्फा एच ढूंढने चलेंगे तो यहाँ पे बस ये एक अल्फा कार्बन है, ये एच अल्फा नहीं है, और यहाँ पे सारे के सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो अल्फा एच कहाँ, एक ही जगह अवेलेबल है। तो अब कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक ही बनना चाहिए ना। चलो देखते हैं कितने बन सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया बेंजीन, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड को रखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ONH, एक ये बन गया। तो दूसरा देखो ये भी बन सकता है क्या, कि हमने यहाँ पे H है, सॉरी यहाँ पे H को लिख दिया, और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को रखा, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को रखा और यहाँ डबल बॉन्ड, अब की बार यहाँ पे OH आ जाए, तो दोनों कीटो ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ तक आपको तो ये समझ में आ गया कि इनॉल फॉर्म कैसे ड्रॉ करने हैं। तो क्या करना है इनॉल फॉर्म के लिए, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैसे हो सकते हैं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जो डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन है उसके जस्ट बगल का कार्बन अल्फा एच हो सकता है, या कॉन्जुगेशन में जाकर के अल्फा एच अवेलेबल हो सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या करने, अल्फा एच ढूंढने हैं। अल्फा एच ढूंढने के बाद क्या करेंगे, जितने कीटो ग्रुप अवेलेबल हैं उसके रिस्पेक्ट में हर अल्फा एच जिस साइड पे, जो डिफरेंट साइड पे अल्फा एच है, उन सभी के साथ इनॉल फॉर्म बनाएंगे। क्लियर है? चलो